if you are adopting experiential learning, thinking about the strengths, about the weaknesses को मैं नया एक नाम दे रहा हूं, areas of improvement, opportunities, what are the opportunities in the time to come as a teacher, means what is your dream project after 5 years, where do you want to see yourself. Students learn better through participation when they are given ownership, when they are acknowledged, when they are what we call acknowledged, and when they are felt important in the class, they learn in a better way. Encourages questioning and exploration. One more thing, Nikita, you must give respect to the questions of the students, and you must reply to the questions asked in a very decent and respectful manner. The end result is, the outcome is joyful classrooms, happy classrooms. This is the Kolb's experiential learning model. अगर हम इसकी बात नहीं करेंगे तो हम मानेंगे कि हमारा अधूरा रहा. What is it? First one is what happened. Then this is engaging in the activity. Number two is, this is activity means you are having doing something here, and then reflecting on the activity done. It means your feelings are involved here. In the very first step, it's a cycle, कहीं से भी शुरू हो सकता है. Here facts are involved in the activity. Reflection involves your feelings, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ, हमने हाथी वाला एग्जांपल दिया था. And then conceptualization, why did this happen, why. When you shall give this why to the children, what will happen? Creation will happen in the classroom. Students, they will become more creative and more critical thinkers. And then application, what do I do next? Future means again SWOT analysis, thinking about the strengths, about the weaknesses को मैं नया एक नाम दे रहा हूं, areas of improvement. Thinking about strengths, weaknesses, areas of improvement, and then SWO, opportunities. What are the opportunities in the time to come as a teacher, means what is your dream project after 5 years, where do you want to see yourself. आप वही पुराने टीचर 5 साल पहले एक बार रिफ्लेक्ट करना, ब्रूडिंग करना, कंटेम्पलेट करना. 2021 में कहां थे आप, कोरोना चल रहा था, या उस 10 साल पहले कहां थे आप, किस तरह के थे. आज से 5 साल बाद आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी. दो जनरली आई आस्क दिस वेरी क्वेश्चन टू सम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ना, सम ऑफ द कैंडिडेट्स हु अपीयर फॉर द इंटरव्यू. मैं उनसे पूछता हूं, मैम वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 इयर्स. वो कहती सर आई एम 26 नाउ, आफ्टर 5 इयर्स आई विल बी 31. मैंने कहा बहुत बड़ी प्रोसेस बता दी आपने. ये तो ऑब्वियस है, नेचुरल है. देन trying out, engaging in the activity, number one, reflection, then gaining knowledge, trying out, testing new skills and abilities, and again improving yourself, sharpening your X. That is the process. ये process है, ये involved है. तो ये scientific terms हैं, ये बताइए बच्चों को. डेविड कॉल्स ने कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस से सीखना है. एक एक्टिविटी करी आपने, उस पर रिफ्लेक्ट किया, उसका अपसेट जो कॉन्सेप्ट थी वो आपने दिमाग में रखी, उसको इंप्रूव करके फिर आगे बढ़ गए, फिर दूसरी एक्टिविटी कर दी, या उसी को और इंप्रूव्ड तरीके से कर दिया. मेरी बात समझे आप. रिफ्लेक्शन जरूर करना है आपको भी, अपने टीचिंग का रिफ्लेक्शन करना है, तभी आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग करवा पाएंगे. ये जरूरत क्यों है इसकी? बिकॉज ट्रेडिशनल जो मैथड था दैट वाज बेस्ड ऑन रोट लर्निंग, एंड it was a constant so far as creativity is concerned. Students learn better through participation when they are given ownership, when they are acknowledged, when they are what we call acknowledged, and when they are felt important in the class, they learn in a better way. आप उनको इंटिमिडेट करोगे, डांटोगे, धमकाओगे, नहीं सीखेंगे. तो जरूरी क्या है आपका, इंपॉर्टेंट क्या है, बच्चों को इंपॉर्टेंट फील कराना, उनको इन्वॉल्व करना, उनको पार्टिसिपेट कराना, बट किसमें, मीनिंगफुल एक्टिविटीज. गुड. सेकेंड वन, डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. कम्युनिकेशन मींस बात कर रहा है लड़का, लड़के लड़कियों से बात नहीं करते. जो जेंडर स्पेसिफिक स्कूल्स होते हैं, देखना आपको 12वीं के बाद लड़कों को बड़ी दिक्कत आती है, लड़कियों से बात नहीं कर पाते वो लड़के, एंड वाइस वर्सा. लड़कियां जो ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हैं, बॉयज से बात नहीं कर सकती. जॉब मार्केट में उनको साथ जाना है, बहुत ज्यादा छूट भी नहीं देनी है. यू मस्ट कीप एन आई ऑन देम. ये नहीं कि सर कह के गए, नो, आपको समय काल परिस्थिति के अनुसार अपने जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन भी लाना है, एक लिमिट भी रखनी है. बैलेंस्ड अप्रोच की हम लोगों ने बात की थी. मेक्स लर्निंग जॉयफुल एंड लर्नर सेंटर्ड. इफ यू आर अडॉप्टिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जॉयफुल लर्निंग होगी, जॉयफुल क्लासरूम. सो ये पर्पस है हमारा. दिस इज द पर्पस व्हाई वी आर आफ्टर दिस वेरी प्रोसेस सिंस मॉर्निंग. द एंड रिजल्ट इज, द आउटकम इज जॉयफुल क्लासरूम्स, हैप्पी क्लासरूम्स. इसके बेनिफिट क्या होंगे? इनहेंस एंगेजमेंट, अगर आप ये लाते हो तो एंगेज होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है. और डीपर अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट को ढंग से समझेंगे. जब खुद करेंगे, गलतियां होंगी, गलतियां तो होंगी, देन स्किल डेवलप होगी उनकी. स्किल कौन सी? जो 4 चीजें हैं, और भी बहुत सारी स्किल्स हैं. जैसे बच्चे अपना मटका बना रहे थे, केवल मटका बनाना थोड़ी, बोले हम मैं क्यों बनवाऊं मटका, मैं मटका बनाने वाला थोड़ी बनना है मेरे बेटे को. नहीं, वो सीखेगा, कॉन्सेंट्रेशन करेगा, वो तेज चल रहा है पहिया,
उससे मैनेज कैसे करना है, अपने हाथ को कैसे बचाना है, सुन रहे हो आप लोग, मिट्टी से कैसे अपने आप को गंदा नहीं करना है, हैंड वॉश कैसे करने हैं, ग्रुप में वेट करना है, सपोज उसका 12वां नंबर है, पेशेंस है, वो बैठा है, 11 बच्चे उससे पहले करें, उनसे हो नहीं रहा है, रेजिलियंस सीखेगा, उसका मटका बार बार टूट रहा है बच्चे का, होता है ना। रेजिलियंस क्या है, द एबिलिटी टू स्टैंड अप आफ्टर अ फेलियर। ये चीज भी जरूर सिखाइए बच्चों को, ये तो एक्टिविटी में होगा ही। मींस व्हेन यू बाउंस बैक आफ्टर फेलियर मींस यू आर रेजिलिएंट। सो दिस स्किल मस्ट बी टॉट, this skill must be practiced. Children, they must be taught about plan B as well. If your plan A fails, you must have a plan B, that is resilience. Means आपको असफलताओं से हार नहीं माननी है। एक बड़ा अच्छा कोट कहीं पढ़ा था मैंने कि असफलता केवल ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। तो बच्चा उसी स्पिरिट के, उसी एनर्जी के साथ फिर खड़ा हो रहा है। ये फेलियर्स क्यों हो रही हैं, सुइसाइड्स क्यों हो रही हैं? बच्चों को बस सिखा दिया गया, स्किल पर बात नहीं हुई, इमोशंस पे बात नहीं हुई, सेंटिमेंट्स पे बात नहीं हुई, केवल सफलता चाहिए, मुझे ये वाला रिजल्ट चाहिए, इतने नंबर चाहिए, डॉक्टर चाहिए। और ब्लेम किस पे आ गया? स्कूल्स पे। सर आई वुड रिक्वेस्ट यू, पेरेंट्स को लूप में लेके चलिए, उनकी ट्रेनिंग निहायत ही जरूरी है। यू मस्ट हैव सीन द न्यू कैलेंडर ऑफ सीबीएसई सर, देयर इज इक्वल फोकस ऑन पेरेंट्स ट्रेनिंग। अच्छा, उनको बताइए, उनको इंपॉर्टेंट फील करें, उनको बताइए जी आपके बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं, जो गैप है सर उसको ब्रिज करवाइए प्लीज। केवल पीटीएम नहीं, स्पेशल सेशंस, आइए उनको चाय समोसे अरेंज करिए, स्कूल में दिखाइए, अपने प्रोजेक्ट डिस्प्ले करवाइएगा, ये आपके बेटे ने बनाया, फोटो खींचेगा, 20 जगह आपके स्कूल को हाईलाइट करेगा। वो दूरियां क्यों रख रहे हो आप? उस दिन बढ़िया सा आपने अच्छे से बलून्स लगवा दिए, सुंदर। आप आ रहे हैं, सपोज आरती मैम बैठी हैं या आरुषि, आप ओके, आपने चाय पी, चाय पीजिएगा, पानी लेंगे आप, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट फील कराइए, उनको लगेगा यार माय स्कूल केयर्स फॉर मी एंड फॉर माय चिल्ड्रन, द स्कूल इज अ गुड प्लेस। यार मैं तो अभी तक, अब तो स्टीरियोटिपिकल इमेज बना रखी थी, लोग तो किसी घुस नहीं देते, अंग्रेजी के अलावा बात नहीं करते, हिंदी में बात करिए उनसे। हम लोग क्या करते हैं जनरली, क्या करते हैं, पेरेंट्स आते हैं उनसे अंग्रेजी चाटने, अरे वो अंग्रेजी सुनने नहीं आया आप लोगों की, वो बेचारा अपने बच्चे को उसको बता दो जी बढ़िया है, थोड़ा और कर देंगे हम लोग। आप धुआंधार बोल रहे, बेचारा इतना ज्यादा अपने शैल में रहता है, वो बड़ा बड़ा बेइज्जत सा महसूस करके। मैं आपकी नहीं कह रहा हूं, मैं जनरल स्कूल्स की कर रहा हूं, जो होते हैं जनरली बड़े स्कूल्स। बड़े स्कूल आप अंग्रेजी वैसे तो बोलनी है, ये को सर आप कह गए थे, मैं तो अब शुद्ध हिंदी की मैं बात करूंगी, अपनी हिंदी को इतनी संवर्धित कर लूंगी सर कि मैं विलक्षण प्रतिभा संपन्न अध्यापकों की श्रेणी में अपने आप को खड़े पाऊंगी, और मैं नित्यन पठन पाठन की जो अभिगामी क्रियाएं होती हैं उनमें अपने आप को संलिप्त करूंगी। सर आप चिंता ना करें सर, आपकी बात शिरोधार्य कर ली है सर, मैं आपकी बातों का अक्षर से पालन करूंगी। ताली तो बजा दो। इतना नहीं करना है, इतना नहीं करना है। जो स्कूल की कल्चर है उसको जरूर फॉलो करिए, कैम्ब्रिज वाला फॉलो कर रहे हैं हम लोग, बट पेरेंट्स को ये बता, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलो, थोड़ी थोड़ी हिंदी बोल लो। जैसे ये राइस ईट नहीं करता है, कल भी इसने अपना जो वाटर लाया था वो ड्रिंक नहीं किया, होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा बोल लेना, मना नहीं कर। बैलेंस अप्रोच जो हम लोग बात कर चुके हैं जी। स्किल, इंप्रूव नॉलेज रिटेंशन। मैं कह रहा हूं जो बातें मैंने गंभीरता से कही है ना, वो बिल्कुल याद नहीं आपको, जोक्स जरूर याद होंगे। कौन सा जोक याद है? बोली सर मुझे ये नहीं पता, मैंने आज नाश्ता किया था कि नहीं किया था, आप जोक की बात कर रहे हो। पता है क्या, अपना अटेंशन स्पैन दीक्षा 3 सेकंड का है। सुबह जो रील देखी थी याद ही नहीं है, सेव करके रख लेते हैं, भर रखा है पूरा, देख नहीं पाते। मैंने नया नया लैपटॉप लिया 2009 में, कोई मूवी देता था, ये देखना भर ली, उसमें पूरी उसकी 320 जीबी का था, सारा भर लिया, रेड होगी वो। आज तक एक मूवी नहीं देखी है। सामान लेके चल रहे हैं हम लोग, मत लेके चलो, तुरंत दिन के दिन निपटाओ चीजों को जी। देन इंक्रीज कॉन्फिडेंस एज वेल, अलाइनमेंट कर ही चुके थे हम लोग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड की बात हो गई थी हमारी। फीचर्स थी स्टूडेंट सेंटर्ड, हर चीज का अगर हम लोग बात करें, जिस्ट ऑफ, बस खत्म करने वाले हैं, जिस्ट ऑफ टुडेस वर्कशॉप इज क्या है, इट इज स्टूडेंट सेंटर्ड, कोलैबोरेटिव इंटरैक्टिव टास्क्स, रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट थ्रू पार्टिसिपेशन। वी डू नॉट टॉक अबाउट द असेसमेंट पार्ट, हालांकि बीच बीच में करते रहे कि बच्चे को इंटिमिडेट नहीं करना, तुमने क्या बनाया, ये तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बोले क्यों नहीं, चुपचाप खड़े थे। तो बोरी में लाश है, उसको भी अप्रिशिएट करना जो आप लोगों ने किया था थोड़े बहुत बार, कोई बात नहीं। आप ऐसा करो बेटा, तुम दीक्षा की जगह जाओ, मान लिया तुम दीक्षा, तुम इधर आ जाओ, अब तुम वो डायलॉग बोलो। मैं, हम लोगों ने वो एक एग्जाम्पल नहीं देखा, पहले आपसे बुलवाया, फिर उधर से शुरू कर दिया, फिर बीच वाले को उधर ले जाइएगा। ये भी नहीं कि एक पे बोझ कर दिया, मान लो 15 बच्चों से एक्टिविटी करवा रहे हो, जो पहले वाला है वो विनर है, तुरंत बता दिया था उसने नाम, 15वें वाले को ऐसे बार बार देख रहा तेरा क्या नाम है, वो इतना कॉम्प्लिकेट मत करियो। मैंने क्या कहा, कभी उधर से शुरू कर दो। वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, सो अ वेराइटी ऑन द पार्ट ऑफ अ टीचर, रोल ऑफ टीचर, फैसिलिटेटर रादर देन इंफॉर्मेशन गिवर, काम करवा रहा है, खुद भी कर रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, वो अपना भी नाम बताए कि मेरा ये राजन है, इस तीसरे नाम, इस तीसरे से हुआ मेरा, ये एक्टिविटी खुद करके दिखाए। डिजाइन मीनिंगफुल क्लासरूम एक्सपीरियंसेस,
encourages questioning and exploration. One more thing, Nikita, you must give respect to the questions of the students, and you must reply to the questions asked in a very decent and respectful manner. Means the question will never be remembered, but the way you interacted, you responded, will always be remembered. So whenever children ask question, what should be done? होना क्या चाहिए? The way you respond, it must be respectful, it must be dignified, it must not be intimidating, it must not demean the child. कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन पूछा है, एक बार बार आता था ना, उसने पूछा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था, बोले क्या डाकू बनना चाह रहे हो? सुना था ना, किसी मूवी का सीन है वो बच्चा वहीं डिमीन हो जाता है। मत करिए, बिकॉज योर रिस्पॉन्स विल बी रिकॉर्डेड। उस बच्चे के जेहन में, दिलो दिमाग में, उसके पेरेंट्स तक पहुंचेगा कि आज मैंने ये क्वेश्चन किया था कि तुम्हारे बस की, तुम्हारी औकात ही नहीं, तुम बन ही नहीं सकते। ये वर्ड यूज ना करें। लैंग्वेज का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है आपको, कंटेंट से ज्यादा आपका मैनर इंपॉर्टेंट है। बार बार हम लोगों ने कम्युनिकेशन की बात करी है। देन डिजाइन एनकरेजेस क्वेश्चनिंग, प्रोवाइड्स फीडबैक एंड रिफ्लेक्टिव। अच्छा था, लेकिन तुमने थोड़ी सी अटकी ना बीच में, उसकी बजाय थोड़ा सा और बोलो। तुम बेहतरीन बोलती हो यार, यू हैव गॉट द गिफ्ट ऑफ द गैब, क्या शानदार तुम्हारी आवाज है, इस पे थोड़ा सा वर्क और करिए। वो बच्चा घर जाके अपने आप को शीशे में देखेगा वो, कि मुझे मेरी टीचर ने नहीं, तो मैम ने अप्रिशिएट किया है। इस तरीके से करिए, थोड़ा सा अपने पे ये वर्क और कर लो। तुम बहुत सी स्पीकर हो, तुम्हारी राइटिंग में दीक्षा ये और दीपिका ये और इंक्लूड हो जाए, मजा आ जाएगा। बस खत्म, बात तो ही का है। तुम कुछ नहीं कर सकते, उसकी बजाय थोड़ा सा एनकरेजमेंट ऑन योर पार्ट। रोल ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? अपन ने टीचर की बात कर ली। रोल ऑफ स्टूडेंट, लर्निंग प्रोसेस, कोलैबोरेशन विद पीयर्स एंड टास्क प्रोजेक्ट्स, इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिफ्लेक्शन और लर्निंग एक्सपीरियंसेस। कोलैबोरेशन के एग्जांपल 2 सब्जेक्ट के करेंगे बस हम लोग। रोल प्ले फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स, मैं एग्जांपल दे चुका हूं, हम लोगों ने एक रोल प्ले करवाया था, छोटा था ये। ग्रुप डिस्कशन एंड स्टोरी टेलिंग एक्टिविटीज। स्टोरीज ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल समटाइम्स ऑन योर पार्ट एज वेल। उन स्टोरीज के इंपैक्ट क्या होते हैं, आउटकम्स क्या होते हैं? एक लड़का बड़ी महंगी घड़ी लेकर आया, पुराने जमाने की बात है, विदेशी घड़ी थी, बहुत कीमती थी, बेशकीमती थी, पापा ने गिफ्ट की थी, घड़ी चोरी हो गई 5वें पीरियड में, रिसेस के जस्ट बाद। पता चल गया कोई बच्चा बाहर नहीं गया क्लास में, क्लास के बच्चे ने चोरी की है। टीचर आए 5वें पीरियड वाले, बच्चे ने शिकायत करी, सर मेरी घड़ी चोरी हो गई है। उसने कहा दरवाजा बंद कर दो, सबकी तलाशी होगी, और सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। सब ने अपनी आंखों पे हाथ रख लिया, बैग चेक की, बैग में मिली नहीं, तो ये था कि जेब में है किसी की। अब वो टीचर खुद सबकी जेब टटोलने लगे, जेब में हाथ डाल के देख रहे हैं। उनको एक बच्चे की जेब में वो घड़ी मिल गई है, वो घड़ी ले आए और टेबल पे रख दी। उन्होंने कहा अपनी अपनी आंखें खोल लो, और जिस बच्चे की घड़ी चोरी हुई थी उसको दे दी कि लो बेटा, और इतनी महंगी घड़ी स्कूल में मत लेकर आया करिएगा। टीचर बात भूल गए। बहुत सालों के बाद, 10 सालों के बाद, टीचर के घर के सामने एक बड़ी चमचमाती गाड़ी आके रुकती है, और एक बंदा उतरता है, अपनी फैमिली के साथ है, बीवी बच्चों के साथ। टीचर के पास जाता है, उनके पैर छूता है, सर पहचाना? बोले नहीं पहचाना। बोले मैं वो फलाने बैच में 2026 बैच में आपका स्टूडेंट रहा हूँ सर। बोले अच्छा, वेरी गुड, तो क्या था? बोले सर आप पढ़ाते थे, और देखो सर एक बच्चे की घड़ी चोरी हो गई थी, बड़ी बेशकीमती घड़ी थी। बोले हाँ याद आ गया। और बोले सर आपने तलाशी ली थी? बोले तुम्हारी घड़ी गायब हुई थी? बोले नहीं सर, हाँ जिसने चोरी की थी ना घड़ी सर, वो मैं लड़का था। मुझे लगा कि गुरुजी ने मेरा नाम किसी को नहीं बताया, मेरी प्राइवेसी रखी है, कॉन्फिडेंशियलिटी रखी है, मुझे गुरुजी को गिफ्ट देना चाहिए। मैं उसी दिन से पढ़ना शुरू कर दिया। मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट होता था, एक एवरेज स्टूडेंट होता था, बट आपके उस जेस्चर ने इतनी प्रेरणा दी मुझे कि मैंने उस दिन से भयंकर पढ़ना शुरू किया। मैं आपके शहर का कलेक्टर बन के आया हूं सर। वो सब आपके उस छोटे से जेस्चर से हुआ है, उसके पैर छुए। बोले सर आपने ऐसा कॉन्फिडेंस क्यों रखा, आपने मेरा नाम क्यों नहीं बताया? बोले वो घड़ी तुमने चोरी की थी? बोले सर आपको नहीं पता? बोले ना मुझे तो नहीं पता। बोले क्यों? बोले मैंने भी अपनी आंखों पे हाथ रखा लगा था। When I searching for the watch, I had my hand on my eyes. क्लियर है मैसेज? समटाइम्स आपको अपनी आंखों पे ये हाथ लगाना पड़ेगा। बच्चे शरारत भी करेंगे, गड़बड़ भी करेंगे, उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मत लेके आइए, उसका अनाउंसमेंट मत करिए, उसको ब्रॉडकास्ट मत करिए प्लीज। वो देखो आप कितने सालों से टीचर हो? 5 साल हो गए, 6 साल हो गए होंगे, 3-4 साल हो गए। लड़का एक बार स्कूल में, पहली बार 11th है उसकी, पहली बार 12th है, पहली बार 9th है, पहली बार स्कूलिंग है। हम तो कराए अपनी स्कूलिंग, कॉलेज भी कराए। उस बच्चे को प्लीज इंपॉर्टेंट फील कराइए, वो चाहे एक्टिविटी सेंटर है, एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग है और कोई अदर पैडागोजी है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन रोल प्ले करेगा? टीचर्स।
उन बच्चों को एक्नॉलेज। 6 घंटे बच्चा स्कूल में रहता है, रीजन बनिए कि बच्चा स्कूल में आए। ये ट्रुएंसेस क्यों होती हैं, बच्चा लॉन्ग समय के लिए एब्सेंट क्यों रहता है, घर में 18 घंटे उसको वही टॉर्चर हो रहा है, स्कूल में 6 घंटे के लिए स्कूल टॉर्चर कर रहा है, विदाउट नोइंग द ट्रू रीजंस, विदाउट डेल्विंग डीप इनटू द साइकी ऑफ द चाइल्ड, वी बिकम जजमेंटल। ये लैप्सेस कहां आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात हो रही है ये बिल्कुल एक, ये मानिए कि एजुकेशनिस्ट रिफाइंड सीजन बंदा बात कर रहा है आपसे। ये गैप्स को आप लोग कर सकते हो, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपको ये मंच प्रदान करते हैं, मानते हो ना आप लोग? प्लीज अपने आप को मैं ये कह के जाऊंगा, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। कल से बच्चा आए उसको वेलकम करिएगा, अपने घर के बच्चे, अपने पड़ोसियों को भी, सबको इंपॉर्टेंट फील कराइए। हम उस बच्चे में असीमित प्रतिभा है, स्किल सेट है, पहचान नहीं पा रहे हैं। बशीर बद्र साहब को मैंने मेंशन किया था, वो कहते हैं कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, ये फूल क्या मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा, और पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने मुझे छूकर नहीं देखा। ये लास्ट लाइन सुनिए आप, मैं मोम हूं उसने मुझे छू, वो मुझे पत्थर कहता है। हम बच्चों को पत्थर कहते हैं, पत्थर का मतलब लेबलिंग। हम अपने साथियों को नहीं समझ पाते हैं। कल से अपनी अप्रोच को चेंज करिएगा प्लीज। मैं फिर बताऊंगा कि मेरा ये 800 किलोमीटर की यात्रा को मैं ये मानूंगा मेरी यात्रा संपूर्ण हुई। ये मैं आई मीन दीज वर्ड्स। हम इस प्लेटफॉर्म पे निकिता मैम दोबारा नहीं मिल पाएंगे। क्यों नहीं मिल पाएंगे? ये नहीं होगा कि दीपिका ही आपके बगल में बैठी हैं या फिर सुशीला ही मैम आपके बगल में बैठी और मैं ऐसे ही बोल रहा हूं सर, नहीं, ये समागम दुर्लभ है। आज जो आप लोगों ने मतलब जिस शिद्दत से मुझे सुना है, रियली आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। अपने लिए जोरदार तालियां बजा लो। एक बार ऐसे हाथ कर लो सारे लोग, ऐसे करो, ये वाला करना उल्टा, इतना तो मान लो, इंस्ट्रक्शन क्लियर हो, कर लिया, कर लो, थोड़ा ऊंचा कर लो, अब थोड़ा सा ऐसे कर लो, ऑल इज वेल, मैं नोबडी इज देयर। हाँ, खुद मैंने सुबह से क्या कह रहा हूं, अपने आप को इंपॉर्टेंट फील नहीं कराओगे, ये कि मैं तो बड़ा ऐसा डिग्रेडेड से टीचर हूं, मुझे तो बोलना ही नहीं आता। आता है आपको, सब कुछ आता है। जरूरत क्या है? पहचानने की अपने आप को। यू नीड टू आइडेंटिफाई योर स्किल सेट, स्वॉट एनालिसिस, इंप्रूवमेंट कॉन्टिन्यूअस है, अनवरत रूप से चलता रहता है, कोई लिमिट नहीं है, कोई ठहराव नहीं है, कोई सीलिंग नहीं है। असीमित संभावनाएं हैं टीचिंग में। लोग कहते हैं कुछ नहीं है, टीचर बन गया तो प्राइवेट स्कूल का टीचर है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गट्स रखिए, करेज रखिए, हिम्मत रखिए और रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। रात को सफर करना पड़ेगा अगर आप भी उसमें जाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट भी आना चाहिए आपको। लोग क्या कहेंगे वो भी देखना पड़ेगा। समझ रहे आप लोग? उन चीजों को मैनेज करना सीखिए, बिल्कुल इमोशनल मैनेजमेंट। जी, क्लासरूम एग्जांपल, सॉरी बस ये कर देता हूं, एक रोल प्ले, ग्रुप डिस्कशन एंड स्टोरी टेलिंग, न्यूज़पेपर और पोस्टर क्रिएशन, डिबेट एंड पीयर इंटरव्यूज फॉर स्पीकिंग प्रैक्टिसेस। सोशल साइंस के टीचर हैं, पोस्ट ऑफिस ले जाइए, अखबार छपते हैं, दैनिक भास्कर या किसी भी अखबार का वो है, उसमें ले जाइए। स्टैंप कैसे बनती हैं, कैसे होती हैं, कैसे चिपकाई जाती हैं, लिफाफे लाइए, लेटर लिखवाइए। मदर्स डे आ रहा था, सारी मदर्स को यहाँ बुलाने के बजाय बच्चों से करवाइए, थैंक यू लेटर लिखवाइए, ग्रेटिट्यूड सिखाइए उनको। और पेरेंट्स को भी कहना कि आपका जैसे अनुराधा की क्लास के सारे बच्चे स्वाति की क्लास में चले गए हैं, स्वाति पेरेंट टीचर मीट कर रही है, उनको कम्युनिकेट कर रही है, ये कहना मैम सर जो भी लोग हैं वो एक एक लेटर लिखे अनुराधा को कि मैम थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सपोर्ट, और बच्चों से लिखवाइए हैंडमेड, और एक एक आप लिखिए। भले ही आप संस्था की तरफ से 3 लिफाफे उनके घर पे भिजवा दो, 5 रुपए का एक आता है, 15 रुपए में कुछ नहीं होता। और कहना ये होमवर्क है, आप क्यों दे रहे हो, फलाना चैट जीपीटी चला रहा, और हैंड रिटन मानूंगी मैं। इस तरह का होमवर्क दे दो कि बेटा ग्रेटिट्यूड नोट फॉर योर पेरेंट्स, टीचर्स, जो प्रीवियस टीचर्स हैं, किस कौन टीचर आपको अच्छे लगे, कोई भी टीचर रैंडम बच्चा लिखेगा, कम्युनिकेशन होगा, राइटिंग स्किल्स होंगी, वो थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, करेगा, सोचेगा, मम्मी से पूछेगा, पापा से पूछेगा, फिर वो सोचेगा लखविंदर कौर मैम भले गुस्सा करती हूँ, अच्छी थी, अच्छी हैं, केयर करती थी, हाँ हाँ, सपना मैम भले ही नाराज रहती हूँ लेकिन यार सिखाया है, मेरी बेटी को तो पहले हिंदी में कुछ नहीं आता, दीपिका मैम ने बहुत मेहनत करी है, वो रिफ्लेक्ट तो करें, उनको मौका ही नहीं दिया हम लोगों ने, वो आए बॉम्बार्डिंग कर दी, 50 समस्या बच्चे की बता दी, पेरेंट्स बेचारा कुछ अच्छा सुनने आया था, आप लोगों ने उसके सर पे एक बंडल और रख दिया, आपको कोसता हुआ बाहर जाएगा। होता है, होता है। आप खुद पेरेंट हो, सोच के देखना कि मैं देखती हूँ बेटा एक बार आने दे पीटीएम, मैं देखती हूँ ये पढ़ा रहे हैं, हालांकि टीचर मानते भी नहीं है,
मनोज सर ने कहा एक बार वो हिंदी की टीचर थी अपनी, उसने चिड़िया लिख रखी थी, बच्चे ने, छोटा बच्चा था, प्राइमरी की टीचर, चिड़िया पे बड़ी की मात्रा लगा रखी, चिड़िया लिख रखी, और वहीं पे टिक मार दिया। पेरेंट्स आ गए, सर के पास कॉपी चली गई, सर ने बुला लिया, बोले मैम ये चिड़िया पे आपने टिक क्यों कर रखा है, ये तो गलत स्पेलिंग है। टीचर बोली नहीं सर, चिड़िया चिड़िया देखी जाती, बड़े वाली चिड़िया है, छोटी चिड़िया, छोटी मात्रा, ऐसा नहीं करना है। मान लेना कि सर सॉरी गलती हो गई, बस खत्म, एडमेंट भी नहीं होना है, एक्सेप्ट करिए। अगर गलती हो जाती पेरेंट्स को कि मैम थोड़ी जल्दबाजी में थी, 40 बच्चों की कॉपी होती है इसलिए गलती हुई, अदरवाइज हमारा इंटेंशन नहीं है, अड़ना नहीं है। पेरेंट्स को भी थोड़ा सा एक क्या चाहिए, थोड़ा सा ये चाहिए कि एक सपोर्ट चाहिए आपकी तरफ से कि अच्छा, उनको तरीके नहीं पता, मैं फिर कह रहा हूं आप बीएड है, एमएड है, आपके पास सारी डिग्रीज मुकम्मल है, एक्सपीरियंस इतना लंबा जी। आई हेयर एंड आई फॉरगेट, आई सी एंड आई रिमेंबर, आई डू एंड अंडरस्टैंड, ये कन्फ्यूशियस ने कहा है, बेंजामिन की बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाया बेचारे ने। Let's be more concerned with who we are teaching rather than what we are teaching. All children deserve to live in worlds that enable them to flourish. Agree? आइए सारे 7 लोग मिलके हम लोग बच्चों की जिंदगी को अच्छा बनाते हैं, बेहतरीन बनाते हैं। So this is the end of the news. Thank you so much for being patient listeners.